Okay, ji, so let's listen to the TH2 presentation of Mr. Khurram Shahzad. It is again point of learning for everybody. How this topic is selected, how he has worked, what all work he has done, and you can ask questions as well by the end of the presentation. So let's listen to Mr. Khurram Shahzad. I've allowed you to share your screen. You will do it from there. जो आप करेंगे वहां से इधर विजिबल होगा. आप इसको प्रेजेंटेशन मोड पे कन्वर्ट करें. ओके जी, नाउ इट्स विजिबल. बताएं जी. And dear examiner and dear fellows, Assalamualaikum. The title of my thesis is a decentralized phishing email detection approach using federated learning with machine learning models. This thesis is supervised by Dr. Fadal Subhan. The table of contents of my thesis are as follows. I will start with the introduction, then it will be followed by summary of literature review. After this, I will explain the problem statement and the self-objectives of my study. And after this, I will explain the data set and research methodology implied in this study. And after this, I will explain the proposed approach and evaluation method used to assess its performance. And then I will explain the results and conclude with conclusion. ठीक है, फॉरम आप इधर आ जाओ. आई कैन डू दैट मूविंग फ्रॉम देयर फॉर यू. और आप इस जगह से प्रेजेंट खड़े होके करें ताकि आपको जो ना इजी हो और आपको आप भी वहीं खड़े हो. मैं आपको प्रेजेंटेशन चला रहा हूँ. Yes, sir. Next. Introduction. In today's digital era, email remains one of the most important communication tools for the organizations worldwide. Due to its widespread use, email platforms are often targeted with cyber attacks. One of the most important main attack is phishing email, an attempt to deceive user into revealing sensitive information like debit card, credit card information is called phishing. Researchers have implemented various machine learning and deep learning algorithms in a centralized environment to detect and prevent phishing attacks. But centralized environment lacks privacy concerns as the data need to be shared across the organizations. So this led me to explore federated learning, a decentralized approach for email phishing detection. Next. Next, we have summary of literature review. In first article, the authors have implemented various algorithms like SVM, naive-Bayes, and LSTM, and they have achieved high performance prediction greater than 99% with SVM. The limitation of their work was that first it was a centralized approach, and the data set is very small, amounting to only 4,000 records. In other article, the author has implemented Themis and Birth, and they have achieved high performance prediction greater than 96% with Themis. Again, the limitation of their work was that they have used small amount of data consisting of only 23,000 records. In other article, the author has implemented LSTM by LSTM, GRU by GRU, and they have achieved high performance prediction greater than 97% with by GRU. Again, the limitation of their work was that first, it was a centralized approach which lacks privacy. Second, the data set is very small, amounting to only 10,000 records. Next. In another article, the author has implemented various machine learning and deep learning algorithms, and they have achieved high performance prediction greater than 97% with voting. Again, the limitation of their work is that first, it was a centralized approach which lacks privacy and security of data. Second, the data set is very small, amounting to 21,000 records. In other article, the author implemented various machine learning algorithms, and they have achieved high performance prediction greater than 98% with SVM. The limitation of their work was that first, it was a centralized approach, and second, the data set is very small, amounting to only 21,000 records.
In other article, the author has implemented neural network, support vector machine, and random forest, and they have achieved 95% accuracy with neural network. Limitation of their work was that first it was a centralized approach and the data set is very small, amounting to only few hundred records. Next. Problem statement. With the rapid growth in the use of distributed systems, there is an increasing need of a decentralized, privacy preserving, and efficient solution to the ever evolving threat of phishing attacks. Anti-phishing working group reported 8,77,536 phishing attacks in the second quarter of 2025. आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ना रेफरेंसेस मेंशन नहीं करते Right, sir. ठीक है Thanks. Research objective. My first research objective was to analyze the privacy preserving benefits and practical applicability of a federated learning in phishing detection system. Second, to design and implement federated learning based framework for email phishing detection. And third objective was to compare the performance of different machine learning algorithms in a centralized environment and in a federated learning environment. Dataset. The dataset for this study was taken from Kaggle site titled as Email Phishing Dataset. This dataset was compiled by researchers from various sources that include Enron, Lynx, Seas, Nizario, and Spam Assassin. The breakdown of the dataset is as follows. The dataset consists of 82,500 records, out of which almost 40,000 are legitimate emails and 42,000 are phishing emails. Next, we have research methodology. First, we have collected dataset from Kaggle site. After the collection of dataset, we perform feature extraction in which we have taken only message body and label field, which indicate either the email is phishing or legitimate. And after this, we perform data cleaning. In data cleaning, we have removed punctuation marks, special characters, stop words, and empty spaces. After data cleaning, we perform tokenization. Now, tokenization is the process of converting individual text into tokens. After tokenization, we implemented various machine learning algorithms in a federated learning environment, which ultimately classify either the email is phishing or legitimate. And at the end, we have evaluated our results. Next, we have a brief description of our research methodology. As I spoke earlier, the dataset was taken from Kaggle phishing email dataset consisting of 82,500 records, and in feature extraction, we have taken message body and label field, and after this, we performed dataset cleaning in which we have removed stop word, punctuation marks, extra spaces, and special characters, and after this, we perform tokenization in which we segment the text into individual tokens. And after this, we implemented various machine learning algorithms in a federated learning environment, which ultimately classifies either the email is phishing and or legitimate. And at the end, we have evaluated our results. सर इसको वो फुल कर In our proposed approach, first we have three clients. For example, first client is Abbasian University, second one is ComSat University, and the third one is ICRA University. And now other we have a central server. Now central server will do the following task. First, it will initiate all the participating clients. After initialization, all these participating clients will start training their model on its own local data set. After training their model, they share the results in the form of weights with the central server. Now, central server will aggregate the updates received from all the clients and creates a global model. Then this global model is shared back with all the participating clients. Now, all these participating clients will replace their old model with the newly received global model, and then they start training their model, and this process continues in fixed number of iteration until the convergence condition is met.
Next, we have evaluation metric. We have used four evaluation metrics, that is accuracy, precision, recall, and F1 score. Now, accuracy tell us out of all the predictions how many were predicted correct, whereas precision tell us out of all the positive predictions how many were actually predicted correct, whereas recall tell us out of all the data points that should be included as true positive how many were actually predicted true positive, and F1 score is simply a harmonic mean between precision and recall. Next, we have results. We have used three algorithms, that is SVM, logistic regression, and multi-layer perceptron. First, we have summary of results of sport vector machine in federated learning environment for 20 rounds. As you can see, the accuracy after first round was 90.04%, which increases to almost 95.5% after the 20th round, whereas precision that was 92.56% after first round increases to almost 95% after the 20th round. Recall, which was after the first round, was 88%, increases to almost 96.5% after the 20th round. Similarly, F1 score after first round was 90.22%, increases to almost 95.7% after the 20th round. Next, we have a visual representation of all the four parameter result for sport vector machine in a federated learning environment. As you can see that all the four parameters shows stability near the 20th round, so our model converges at 20th round. Next, we performed comparison of sport vector machine centralized model versus sport vector machine federated model. As you can see that the difference of their results is very minimal. This shows that our federated learning model has the ability to replace centralized model where the data privacy is of the main concern. Here is a performance comparison bar chart of SVM base versus SVM federated learning models. Next, we have a summary of results of logistic regression in federated learning environment. As you can see, the accuracy after the first round was 87%, which increases to 93.6% after the 20th round. Similarly, precision that was after first round 88.76% increases to 93.63% after the 20th round. Similarly, recall that was 86.2% after the first round increases to almost 94.1% after the 20th round. Similarly, F1 score after first round was 87.45%, which increases to almost 94% after the 20th round. Next, we have a visual representation of our logistic regression results in a federated learning environment for all the four parameters. As you can see that all the four parameters show stability near the 20th round. So our model converges at 20th round. And next, we perform comparison of logistic regression based model, which is a centralized approach, versus logistic regression federated learning model. And as you can see that our federated learning perform little less as compared to centralized environment. And as you can see, the difference is negligible, as we have achieved privacy and security of our data in a federated learning environment, which was not possible in a centralized environment. And here is the performance comparison of LR based model bar chart versus LR federated learning model. Next, we have multi-layer results or summary of results of multi-layer perceptron in federated learning environment. As you can see, the accuracy after the first round was 88.4%, which increases to 96.28%. Similarly, precision that was 86.47%, increases to almost 96% after the 20th round. Similarly, recall that was 92.2%, increases to almost 97% after the 20th round. And F1 score, which was 89.24% after first round, increases to almost 96.5% after the
20th round. And next is the visual representation of our four parameters result of MLP in a federated learning environment. As you can see that all the four parameters show stability near the 20th round. So our model converges at 20th round. Next, we perform comparison of MLP based model, which is a centralized approach versus MLP federated learning model. As you can see that our federated learning model achieved higher accuracy, higher precision and recall and F1 score across all the four parameters. So this shows that our federated learning has the ability to replace centralized environment where security and privacy of the data is of the main concern. Next, we perform here is the performance comparison bar chart of MLP based model versus MLP federated learning model. As you can see that across all the four parameters, our model shows better performance as compared to centralized model. Next, we perform comparison of all these models in a federated learning environment, and which shows that MLP model achieve higher results across the four parameters as compared to other machine learning algorithms. And here's a bar chart of performance comparison LRSVM and MLP. And as you can see, the green bar, which is the MLP, shows better result across all the four parameters as compared to other models. Next, we have conclusion and recommendations. First, we have achieved accuracy in a decentralized environment almost near to a centralized environment. Second, our MLP model achieve higher accuracy as compared to other models in a centralized environment as well as in a federated learning model. Third, we have enabled privacy preserving by not sharing the local client's raw data, only sharing their weights. The future work should investigate scalability to reflect real world problems. And while we have used Fed average algorithm for aggregation, more advanced approaches could be explored to improve stability and performance. That's all. ठीक है जी परम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मेरे कुछ पॉइंट्स जो है वो कुछ सजेशंस हैं, इम्प्रूवमेंट्स हैं सबके लिए, ताकि वो सबको पता हो। और सेकंडली तो कुछ क्वेश्चन मैं आपने करने पे आपने क्या आपने मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग किया है। एक तो ये याद रखें कि जो आपने ये ग्राफ दिया है, असली ग्राफ आपका ये है बस, कंपैरेटिव एनालिसिस है इज दी वन, राइट। इट इज ऑलवेज वन टेक्निकल कंपैरिजन ऑफ ऑल द अप्रोचेस, इंस्टेड ऑफ कि आप अलग-अलग उनको कंपेयर करना शुरू कर दें जो उनको कर किया हो, राइट सर। ठीक है, क्योंकि आपने एक सोल्यूशन दिया है, राइट सर, ठीक है, वो सोल्यूशन है वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के साथ, राइट, ये आपका प्रपोज मेथड है, राइट, और उसका कंपैरेटिव एनालिसिस आपने बाकियों के साथ आप ये प्रेजेंट करते हैं और इसको आप फिर तोड़ सकते हैं नीचे के लिए, राइट, मैंने इसके अंदर क्या क्या काम किया, राइट, बट दिस शुड कम फर्स्ट, ये आपका पहला काम होना चाहिए, राइट। अच्छा, तो उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि ओके मुझे इसे ये बता दें कि आपने कहा कि मैंने तीन तरीके इस्तेमाल किए हैं, एक मल्टीपल परसेप्ट्रॉन से मैंने काम किया है, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन से इस्तेमाल किया है, और एक मैंने किया है एसवीएम। तो काइंडली पहले से सबसे सिंपल वाले से शुरू करते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है ये और लीनियर रिग्रेशन में फर्क क्या होता है सर? आपका पैन यूज कर ये सर फर्स्ट ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है, ये लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहाँ तक सेम होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आता है कि ये लीनियर रिग्रेशन हमें कंटिन्यूअस वैल्यू देता है, जबकि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ये क्लासिफिकेशन है, ये हमें बिटवीन 0 and 1 के देता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी रिजल्ट आता है, जो हमारे पास रॉस को इस दी वैल्यू का आता है, ये हम सिग्माइड फंक्शन को पास कर देते हैं। देन ये सिग्माइड फंक्शन जो है हमें बिटवीन 0 and
वन के कोई भी मॉडल की जो है ना प्रोबेबिलिटी दे देता है, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल होता है। और इसका हम थ्रेशोल्ड ये रखते हैं कि अगर 0.5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 प्रोबेबिलिटी होगी तो ये फिशिंग होगी, और अगर लेस देन 0.5 होगी तो ये लीगल इम्यूनिटी है लोग। ये दोनों में मेन जो डिफरेंस है। ठीक है। तो इसको आपने कहा जी कि ये जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशंस दिए हैं। राइट। इसको लॉजिस्टिक क्यों कहते हैं, मतलब ठीक है, लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन लीनियर है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों है, लॉजिस्टिक का वर्ड क्यों यूज हो रहा है? सर बेसिकली ये है तो रिक्शन फैमिली से ही बिलोंग करता है, लेकिन जो इसकी नेचर है कि जो हमें ये क्लासिफाई करता है, मतलब दो क्लासेस को क्लासिफाई करता है, या यस या नो की फॉर्म में, तो इस वजह से इसको जो है वो लॉजिस्टिक नाम दिया गया। यस के नो से लॉजिस्टिक का क्या ताल्लुक? लॉजिस्टिक का वर्ड इज, इसके अंदर एलओजी लॉग का लफ्ज यूज हो रहा है, लॉग। कोई ताल्लुक लॉग से हो सकता है, इसलिए यस नो से तो नहीं हो सकता। सर लॉग तो ये है कि हम इसके अंदर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस हम इसके अंदर फाइंड करते हैं। उसके नहीं मारने पाकिस्तानियों की तरह, राइट ऐसा पता होता है तो कहता है बंदा मुझे पता है, नहीं पता तो कहता है मैं चेक करके बताऊंगा सभी। सर, मैं चेक कर। दोनों जवाब बता। राइट। ठीक है। इसका जवाब ये है कि आप जब इस पर्टिकुलर फंक्शन का लॉग लेंगे ना, तो ये जो कि सी है इसको लॉजिक कहते हैं। लॉजिक। ये नंबर होता है ना, राइट। इस नंबर को आप दोबारा निकाल सकते हैं जब आप प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। राइट तो सर। एक प्रोबेबिलिटी यस की होगी पी, और एक एक नो की नो की होगी होगी। माइनस पी। इसका जब आप लॉग लेंगे तो दोबारा जी आ जाएगा। राइट सर। ठीक है, लेकिन ये चेक करेगा और सर मैं नोट निकाल लिया। नहीं बस सही, ठीक है, आप कर लें। लेकिन ये कि जब सवाल का जवाब पता हो तो देखिए सबके ये पॉइंट है, मैं ये नहीं इनके लिए कह रहा हूँ कि पॉइंट मैंने स्पेशली से पूछा कि जब भी आप लोगों से सवाल किया जाए और आपको जवाब नहीं आता तो भाई मान ले नहीं राइट। आता। बिलावल है कि इधर उधर के जवाब दोगे तो और ज्यादा राइट। बेनिफिट होगी। गुड। ठीक है। अच्छा चलिए, ये चीज होगी। अब आप आते हैं हम आपके मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के ऊपर। यस। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन जो है उसके अंदर भी कोई एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट होता है। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन तो एक आर्किटेक्चर का नाम है। तो आपने उसमें एल्गोरिथम कौन सा इम्प्लीमेंट किया है, क्या चीज जिससे उसकी ट्रेनिंग की है, किस चीज की टेस्टिंग की है, वो क्या है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हमारे पास या पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि एमएल का स्ट्रक्चर है क्या आपका, सर नॉलेज है फर्स्ट क्या? वही है, वहाँ हमारे इनपुट पे 3000 फीचर्स हैं, और एक हमारी हिडन लेयर है, उसमें 64 न्यूरॉन हैं जो मेरे मॉडल का आर्किटेक्चर है। और उस पे फिर हमने रेलू एक्टिवेशन फंक्शन इम्प्लाई किया है, और आफ्टर दिस हमारे पास आउटपुट लेयर है, और उसके ऊपर हमने सिग्माइड फंक्शन अप्लाई की। ये हमारा आर्किटेक्चर है। हिडन लेयर का क्या है, 64 न्यूरॉन्स है। यस सर। इनपुट लेयर में 3000 न्यूरॉन्स है। इनपुट फीचर्स और हैं। आउटपुट कितनी है? आउटपुट एक ये। एक है। क्यों एक, एक क्यों होनी चाहिए या एक क्यों है? सर क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्लासिफिकेशन है कि आइदर द ईमेल इज फिशिंग है या लेजिटिमेट, तो हमें रिजल्ट एक ही मिलता है। यस या नो के लिए यस चाहिए, की तो नो। एक जवाब चाहिए इसलिए एक है। यस सर। ठीक है। तो मटेरियल परसेप्ट्रॉन में आपने ये कहा कि इसका स्ट्रक्चर है 3064 1, यस। 3064-1। दैट्स। ठीक है। अब इसके अंदर आपका जो ट्रेनिंग का रूल आपने इम्प्लीमेंट किया है, कितना डाटा आपने इसको दिया है? सर 70-30 70-30 दिया है। ट्रेनिंग बेस्ट। और जो ट्रेनिंग की इक्वेशन है, अगर मैं पूछूं कि क्या ट्रेनिंग की इक्वेशन, क्या कौन सा एल्गोरिथम है जिससे ट्रेन हो रहा है, किस एल्गोरिथम को यूज किया? ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए सर अप्रोच का तो नहीं, लेकिन वो ब्रेक डाउन मैं बता सकता हूँ कि मतलब टोटल हमारे पास जो। हाँ सही है। हाँ देखो, आपने राइट। इम्प्लीमेंट किया है तो आपने डाटा दिया है, तो किसको दिया डाटा? इस हिसाब से आपने ये लॉजिस्टिक वेरिएशन की इक्वेशन लिखी है। राइट यहाँ पे अगर मैं आपसे चलो वापस इस सवाल पे आते हैं, राइट। इक्वेशन इज इक्वल्स टू wx+3। यस सर। डाटा जो है वो इसमें कितना है, आपने इसको भी यही 3000 फीचर दिए हैं। सर वो तो इसी तरह ये वो हमारे पास बन जाएगा ना, W1 प्लस W2 प्लस W3। अब तो जितने भी हमारे पास। नहीं, ये इक्वेशन यही बनेगी, w1 आगे कुछ के साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? सर W सॉरी X1 X2। ठीक है, कितना एक्सी से मल्टीप्लाई होगा? सर ये थ्री जो 3000 फीचर है। ये पूरी एक इक्वेशन जो बनेगी इसमें 3000
ये होंगे W1 X1 से लेके जी W3000 X3000 तक ये पूरी इक्वेशन बनेगी। यस ठीक है, सर। तो ये यस इक्वेशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगी, ये ग्राफ में इसका प्लॉट होगा तो ये क्या प्लॉट होगा? सर, यहाँ तक वो देखा जाए तो वो तो एक इस तरह हमारे पास वो रेंज तो नहीं होगी वैल्यूज की, मतलब लिमिट नहीं होगी। लेकिन जब हम इसको समझे सवाल मैंने ये किया है, C plus to WX plus B, जब ये इक्वेशन है तो इस इक्वेशन की फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है, क्या चीज ड्रॉ होती है जब इसको ड्रॉ करना है? तो ड्रॉ कर सकते हैं ना, दो वेरिएबल्स है इसमें, जी सर, इसी तरह। क्या ड्रॉ कर? सर ये हमारे पास एक तरफ हमारे पास आ जाएगा, इनपुट आ जाएगी, और दूसरी साइड पे हमारे पास वेट फैक्टर आ जाएगा। इस इक्वेशन में वेट फैक्टर तो नहीं आएगा ना, इसमें दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, Z plus to WX plus B में? सर एक तो इसका एक इनपुट ये हमारा फीचर है, एक वेरिएबल ये और ये उसका ये वेटेज है, डब्ल्यू, वेट अलग है, मतलब स्लोप कह सकते हैं। ठीक है। तो मैं अभी तो पूछूं कि इसको प्लॉट करेंगे तो क्या प्लॉट होगा, कितनी दरमियान प्लॉट होगा ये, कौन सा दूसरा वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल? सर दूसरा, ये तो हमारे पास बायस फैक्टर है ना। हाँ, बायस फैक्टर जो है वो जो डिसीजन बाउंड्री है उसको शिफ्ट करने के लिए हम ऐड करते हैं। तो वेरिएबल दूसरा कौन सा है? सर वेरिएबल तो हमारे पास एक ही है, ये एक्स। नहीं, तो ये Z कैसे लगेगी, हटा दे रहा है बट ये भी तो वेरिएबल है ना। ये इसका रिजल्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, लीनियर है। डिपेंडेंट वेरिएबल है, x के ऊपर डिपेंडेंट यस सर, है, ये दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल। तो इधर Z और x, ये दो वेरिएबल प्लॉट हो गए इस के ऊपर, तो क्या है भाई, ये इक्वेशन प्लॉट करें तो क्या बनेगा? एक को Z, एक तरफ Z लिखो, एक तरफ x लिखो, दो वेरिएबल्स है, एक Z है। यस सर। हाँ, और ये x है। अब ये लाइन प्लॉट करके तो क्या प्लॉट होगी? सर इस तरह ये हमारे पास अब एक्स की वैल्यू पे, आर एक्स की वैल्यू पे हमारे पास एक जी स्कोर आएगा। क्या, तो क्या प्लॉट होगा सर इस तरह। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये सामने ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है ना आपने? यस सर। तो ये क्या होगी? सर ये इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। इसमें क्या चीज क्या है इसमें, उस इक्वेशन से रिलेट करो ना, इसमें बी के दर। सर वो तो हम फिर वो 3D उसको। बेटी तो नहीं, इक्वेशन टू की 1D है। सर जब बाईस फैक्टर ऐड होगा फिर 2D 3D नहीं बनेगी, या यही। बेसिक मैथमेटिक्स तो कहती है कि मैंने इस पे कांस्टेंट टर्म है। यस सर, कांस्टेंट कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होता है, 3D कहां से आ गया, दो डायमेंशनल दस के अंदर एक Z और एक X। यस सर। B is fixed, W is fixed, यस सर, तो कांस्टेंट क्या वैल्यू। होना चाहिए, क्या ड्रॉ होना चाहिए? सर वो या तो एक कर्व ड्रा होनी चाहिए। नो, सॉरी सर, नहीं पहुंच पा रहा। आपकी बेसिक्स जो है वो पहले भी वीक थी और अभी भी वीक है, यही पॉइंट हमने लास्ट टाइम पे आपको बात करी, यू नीड टू राइट इम्प्रूव अपॉन योर बेसिक्स, पता होना चाहिए आपका चीजों। राइट सर। अब मैं इसी से अगर अगला सवाल करूंगा, जो एमएलपी के अंदर एल्गोरिथम है वो कौन सा? एमएलपी में आपने एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किया है, जो कोड रन कर रहा होगा उसका कोई नाम होगा, क्या? सर वो तो सिंपल, हमने फॉरवर्ड प्रोपोगेशन करते हैं एमएलपी के अंदर, वो उसका आर्किटेक्चर वो दूसरी मैंने स्लाइड आपको बनाई पता थी। होना चाहिए, अगर मैं कहना है बोले तो आप प्लीज राइट होगा। सर वो दूसरी पीपीटी में सर। नहीं, तो आप ऐसे मुझे एक्सप्लेन करें थोड़ा, क्योंकि क्यों बोलते हैं? ठीक है आप मुझे बताएं कि एमएलपी के अंदर ट्रेनिंग के लिए कौन सा रूल इम्प्लीमेंट होता है? सर, ये मिसाल के तौर पर हमारे पास इनपुट न्यूरॉन है, इनपुट है, और ये हमारे पास हिडन लेयर है। ठीक है, तो ये सर इस तरह ना फुली कनेक्टेड लेयर हमारे पास होती है, और हर एक का ना ये हमारे पास x1 की वैल्यू होगी, ठीक है, ये x2 की, ये x3 की, x4 की, और देन हमारे पास हर जो नेक्स्ट हिडन लेयर के साथ कनेक्ट हो रहा है उसका वेट होता है। ठीक है। सर इस क्या तरह क्या का। क्या होगा भाई?
सर इस तरह इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो इसके पास चला जाता है, फिर इसका x2 का और जो इसके साथ कनेक्ट आ रहा है उसका जो वेट होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसका रिजल्ट आता है यहाँ पे चला जाता है, और फिर इनका इन सब की जो फुली कनेक्टेड लेयर है जो हमारे पास एक्स एन और डब्ल्यू एन का रिजल्ट आएगा, इन सब को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है वो +22 उसमें ऐड करके तो हमारे पास एक हमारे पास क्लास स्कोर आ जाता है। नहीं, ये आपने जो इन अंडों के ऊपर x1 x2 बिठा दी है, ये x1 x2 इनके ऊपर नहीं होते, ये इनके ऊपर इनपुट होती है। इनपुट, ये तो अपना वेट होता है। यस सर, इनकी वैल्यू तो हुई ना, इनपुट कुछ भी 0.2 वैल्यू है, इसकी 0.5 वैल्यू है, इसी तरह वेट्स की अपनी वैल्यू होगी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इधर जाके सब लोग ये काम करो, जो आपने राइट साइड के ऊपर न्यूरॉन बनाया हुआ है इसकी एक इक्वेशन लिख लो। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? हर जगह पे इक्वेशन बन रही होगी। इसके न्यूरॉन पे इक्वेशन लिखो क्या होगी। आप ये नहीं, ये आपने सीधा ड्रॉ की हुई है, इसी की मदद से जरा बता दोगे क्या इक्वेशन। W1 x1 plus is वो तो आपने लाइन लगाई नहीं उसके साथ, तो फिर कहाँ से आप बता रहे हो, वो तो जाएगी कि नहीं। नीचे लिख लो थोड़ा सा, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर ये इसकी इक्वेशन है। 4 इनपुट से सर अभी जो ड्रा की है उसके हिसाब से 4 है, और इसमें 22 आ गया। सर ये +b/, कहाँ गया 22? इधर इनपुट आ गई। सर यहाँ से ना 22 फैक्टर, सर इन जितने भी न्यूरॉन होंगे सबको इन 22 फैक्टर मिलेगा। और उसको नहीं मिलेगा जो शुरू में न्यूरॉन। उसको भी सर मिलेगा। अभी तुम्हें गौर से चीजें नहीं की है, बस सर दानिश पड़ेगी। सर 22 फैक्टर अगर हम हिडन को दे रहे हैं तो सिर्फ हिडन को होगा, अगर इनपुट पे हमारी मर्जी तो होती है कि हम दे रहे हैं तो नहीं दे सर रहे हैं। आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेड है, उसमें जो एक इन्वेंटर ने बनाया है वो वही कर रहा है उसमें। जस्ट हिडन लेयर, जस्ट कर लेंगे, आउटपुट ले लिया इसके बाद आउटपुट लेयर भी उसमें क्या होगा। सर उस पे भी हिडन, उस पे भी 22 फैक्टर B2 होगा। अच्छा, ये आपने फॉरवर्ड में से मैंने आपकी बात ही थी आगे लेके करनी है, आपने सारा चीजें इसको कैलकुलेट कर लिया। Right. अब उसके बाद क्या होता है, से आउटपुट के सर, बाद उसके एक बाद से बन गई। अब फाइनल हमारे पास आउटपुट आ गई। ठीक है, अब उस पे जो हमारे पास ये समझो O3 का रिजल्ट आया, अब उसको हम जो हमारी एक्चुअल थी, क्या इधर वो फिशिंग थी या लेजिटिमेट थी, उसके साथ हम इसको ना कंपैरिजन करते हैं या डिफरेंस निकालते हैं। अगर तो वही आई है तो यहाँ पे काम खत्म हो जाता है, और अगर वो नहीं आई तो यहाँ पे आके हम एरर निकालते हैं, उस एरर को देन हम बैक प्रोपोगेट करते हैं। वो एरर बैक प्रोपोगेट करने के बाद फिर हम उसके जो है एंड में जाके एरर बैक प्रोपोगेट करने के बाद वेट्स को अप अपडेट करते हैं, और देन इस तरफ फिर फॉरवर्ड हम नए वेट्स के साथ फॉरवर्ड प्रोपोगेशन करते हैं, और जो रिजल्ट निकलता है देन आगे यहाँ पे फिर हम उसका डिफरेंस निकालते हैं। अगर तो बहुत मिनिमम होता है तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे जो है वो खत्म कर दें कि ये हमारा रिजल्ट है, और अगर तो वो खास ज्यादा डिफरेंस है तो मॉडल उसको इसी तरह इटरेशन में प्रोसेस करता रहता तो जो वेट अपडेट की इक्वेशन होती है, कोई याद है क्या होती है वेट अपडेट की? क्या कोई एक सिंपल इक्वेशन लिखना, अगर लिखना चाहो या आपको याद है है। वेट अपडेट की। हाँ, सर वेट अपडेट की हमारे पास की होती है W ओल्ड इज इक्वल टू WL न्यू माइनस लर्निंग रेट into derivative of loss with respect to derivative of weight. W old is equal to W new, sorry. तो ये हमारे पास इस इक्वेशन, इक्वेशन का नाम क्या है, ये क्या है?
ये जो आपने DE/DW लिखा है, ये क्या चीज होती है? सर ये डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू मॉडल पैरामीटर्स होता है। ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट है सर। इसका कोई सर्टिफिकेट का नाम होना चाहिए। सर इसको स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट ही सर, उसके तहत हम इसको ऑप्टिमाइज। स्टोकेस्टिक में आता हूँ अभी तुम्हारे सवाल, अपने इस जवाब से मैं सवाल बना। राइट इसका नाम है ग्रेडियंट डिसेंट ट्रेनिंग रूल। राइट ग्रेडियंट डिसेंट। राइट। ये ग्रेडियंट का ड्रॉप होना चाहिए, एरर को हर नई इक्वेशन में हमने मिनिमाइज करना है। स्टोकेस्टिक क्या चीज होती है? जब अभी आपने कहा स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट मैंने यूज किया है, क्या मतलब? स्टोकेस्टिक में ये होता है कि वो बजाय कि पूरा डाटा सेट लेने के वो बैचेस के अंदर डाटा लेता है, डाटा सेट के चंक्स लेता है, इसलिए हम उसको स्टोकेस्टिक वो तो ग्रेडियंट। बैच ग्रेडियंट डिसेंट होता है। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एक आई थिंक एक ही दफा पूरा डाटा सेट लेता है और उस पे सर एक ही दफा स्टोकेस्टिक वो एक ही दफा सारा डाटा सेट लेता है। सारा डाटा सेट तो फिर सारे डाटा सेट लेगा तो फिर स्टोकेस्टिक का नाम तो फायदा ही ना होगा, सारा ही लेना है अगर। सर सब में से एक लेता है सिर्फ। सब में से एक। मैं जो कह रहा हूँ मान के, मैं क्या बोल गलत कर रहा हूँ? नहीं सर आप सही कह रहे हैं, आप याद नहीं, आ मैं गया। गलत कह रहा हूँ। सर आप सही कह रहे हैं, एक चंक ले। पहले तो सोचो कि मैं एक चीज कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ। देखो आपको पढ़ने की हिस्ट्री बेहतर है कि ये पढ़ गया उन चीजों को। राइट लेकिन यू आर स्टिल वेरी शेकी, नॉट क्लियर कि ये तो बड़े, मैं आपसे बिल्कुल आसान सवाल पूछ लो, मुश्किल पूछ ही नहीं मैंने। राइट। तो तैयारी आपकी नहीं है? हम्म? चलो ठीक हो गया, बस सही है। आज के लिए तो काफी। चलो थैंक यू। या फिर सिस्टम का ड्रॉप करो। ठीक है जी, हम अभी अपना आज जो क्लोज करते हैं। ठीक है, आज के लिए व्हाट आई ट्राई टू डू। चलिए यहाँ पे ये ठीक है, आप ये रखो। ओके जी, ऑनलाइन जो लोग हैं आप में से किसी का कोई सवाल है जी? ये ऑल गॉन? नो सर। नो सर। चलिए चलिए ठीक हो गया। सो हम इसको सेशन को आज इतना ही रखते हैं। मैं आपसे लिंक्स कुछ शेयर करूंगा रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। ठीक है, यू नीड टू गो थ्रू दोज थिंग्स। देखिए उनको आप, और अकॉर्डिंगली उन पे अपना आइडिया बनाएं, और फिर हम उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या वो क्या समझ आई है। ठीक है। सो रेफरेंसिंग ये क्या होती है, इसके तरीका क्या होता है, ये क्यों की जाती है, इस हवाले से मैं आपको लेक्चर लिंक्स कुछ एक या दो शेयर करूंगा। और जो आज का लेक्चर है, टिल दिस पॉइंट इट वुड बी पार्ट ऑफ योर, आप अनकॉमन करोगे सर। Till this today's lecture, including the referencing standards, would be included in your exam. नेक्स्ट वीक में एग्जाम है ना आपका, वो रिटर्न एग्जाम है। हाँ, तो उसके अंदर जो हमने अब तक पढ़ी है चीजें, आज के लेक्चर शामिल होगा उसमें। रेफरेंसिंग के स्टैंडर्ड्स मैंने कुछ आपसे आपको लिंक शेयर करूंगा, वो आपने पढ़ने हैं, उनको देखना है, उन पर नोट्स बनाने, और वो भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका जब देख लेते हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, और उसको हम क्लियर कर सकते हैं। पेपर का पैटर्न जी बिल्कुल अच्छा सवाल है अली रजा। पेपर का पैटर्न होगा जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो। कॉन्सेप्ट पूछूंगा मैं आपसे, जिस तरह मैंने अभी आपसे कॉन्सेप्ट पूछा ना एक, कि जी आपने कहा जी सिंगल ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड रिव्यू में क्या फर्क होता है, ये कुड बी अ क्वेश्चन कि जी बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल ब्लाइंड एंड डबल ब्लाइंड। अगर आपने मेरी बात सुनी है तो आप जवाब दे देंगे, नोट्स बनाए हैं तो जवाब दे देंगे, नहीं बनाए तो बस रह जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा जी जेपीआई जो है वो कैसे नोट की जाती है, कहाँ पे गिवन है जेपीआई कैलकुलेट करने के लिए या देखने के लिए, कहाँ जाके देखते हैं। मैं आपसे पूछूंगा जी ओके बता दें कि इम्पैक्ट फैक्टर की कैलकुलेशन की क्या तरीका कार है, और इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो वेब ऑफ साइंस देता है या स्कोपस देता है, पढ़ा होगा तो बता दोगे। मैं आपसे पूछूंगा जी स्कोपस जनरल रैंक जो है ये क्या चीज़ है, कहाँ से मिलती है, अगर आपने पढ़ी होगी तो आप बता देंगे। ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे फ्रॉम द लेक्चर्स। जो आपने समरीज बनाई है उनको एक दफा स्क्रॉल करें, अगर अच्छी नहीं बनाई तो लेक्चर्स दोबारा देखें, उनको अच्छी तरह से फिल करें, और उसी के अंदर से आपसे सवाल होंगे। और अल्टीमेटली पता भी मुझे चल जाएगा कि आपने लेक्चर देखे कि नहीं देखे, और दैट इज ऑल। सर हम लोगों की प्रेजेंटेशन पेंडिंग है उसकी, तो वो भी आप लोग जब प्रेजेंटेशन अपनी बना लेते हैं तो मुझे बताइएगा, आई कैन गिव यू सम टाइम ऑन जूम, ठीक है। तो अपने आप घर से ऑफिस से मुझे प्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है, ठीक है, सर कल रेडी हो जब भी आप रेडी, कल परसों तरसों जब भी आप, तो जैसे जैसे वही मैं कह रहा हूँ आपके ऊपर है, आप जब रेडी कर लो। एग्जाम से पहले आपने बस मुझे कोई टाइम बताना है, एंड वी कैन लिसन टू। इसकी सेमेस्टर
नेक्स्ट फ्राइडे से शायद एग्जाम्स हैं, तो नेक्स्ट वीक में हमारी क्लास नहीं होगी, एग्जाम ही आप क्लियर होंगे। उसके अगले वीक से आपकी एक एक वीक है एग्जाम क्लासेस हैं, उसके बाद फिर छुट्टियां ईद की होंगी। तो